Hello everyone, welcome back to my channel Harshita Education. Today we are going to continue chapter 3, How the State Government Works, from class 7th Civics NCERT syllabus semester 1. Hello students, so let's continue our chapter 3. Working of the government. The Legislative Assembly is not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. तो लेजिस्लेटिव असेंबली ही खाली एकमात्र स्थान नहीं है जहां सरकार के कार्यों के बारे में राय व्यक्त की जाती है, यानी लोग अपने व्यूज़ रखते हैं. आप न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल और ऐसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सारे हैं जो नियमित रूप से सरकार के बारे में बात करती रहती है. तो लोकतंत्र में लोग अपने विचारों को बहुत सारी तरह से व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं और उस पर कार्यवाही भी वो लोग करते हैं. तो यहाँ पर एक तरह से हम एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझ सकते हैं. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. Large number of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at the meeting. This discussion were then reported in different newspapers. The following page has one such report. तो विधानसभा में चर्चा के तुरंत बाद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी. बड़ी संख्या में अलग अलग न्यूज़पेपर्स के जो अखबारों के जो लोग थे वो वहाँ पे मौजूद थे. काफ़ी सारी जो मंत्री थे और जो सरकारी ऑफिसर्स थे वहाँ पे उपस्थित थे. मंत्री ने उन कदमों के बारे में, उन स्टेप्स के बारे में बताया जो सरकार ने उठाए थे. रिपोर्टर्स ने इस मीटिंग में काफ़ी सारे सवाल पूछे मंत्रियों से और इन डिस्कशन को बाद में अलग अलग अखबारों में अलग अलग तरह से बताया गया. During the next week, the Chief Minister and the Minister of Health visited Patlapuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced a compensation for these families. The Chief Minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. तो अगले सप्ताह के दौरान क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री थे और जो स्वास्थ्य मंत्री थे उन्होंने पाटलापुरम जिले का दौरा किया. उन परिवारों से वो लोग मिलने गए जो अपने रिश्तेदारों को खो चुके थे और हॉस्पिटल्स में लोगों को मिलने भी गए. सरकार ने इन परिवारों को मुआवजा देने की भी घोषणा करी. तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्हें लगा कि समस्या केवल स्वच्छता की नहीं है बल्कि स्वच्छ पेयजल यानी जो पीने का पानी है उसकी कमी की भी है. उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति से कहा जाएगा कि वो स्वच्छता की सुविधा प्रदान करने के लिए जिले की आवश्यकताओं पर ध्यान दे और लोक निर्माण मंत्री से अनुरोध करेगी कि वे इन जगहों पर उचित जल की आपूर्ति की ज़रूरतों का ध्यान रखें. नाउ हियर वन cutting is given from the newspaper that government smells the garbage. Chief Minister promises fund for work. During the last few weeks, there have been many deaths in some districts of our state. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. The health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and the chief medical officers to take urgent measures. The most important problem is that of drinking water. The minister said that they intend to supply drinking water to every village through tanker trucks. The chief minister has promised funds for this work. They also plan to start a campaign to inform people about the steps that can be taken to prevent diarrhea. When a reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected, the chief minister said that he would look into this.
तो यहाँ पे ये जो स्मॉल छोटी सी गार्बेज के बारे में एक छोटी सी कटिंग जो न्यूज़पेपर में है उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो पिछले कई हफ्तों के दौरान राज्य के कई डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मौतें हो चुकी थी। सरकार ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया था। हेल्थ मिनिस्टर ने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये बताया कि हमारी सरकार ने कलेक्टर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर से ज़रूरी कदम उठाने के लिए कहा है। तो सबसे बड़ी समस्या जो थी वो थी पीने के पानी की। तो इस बात पर मंत्री ने बताया कि पीने के पानी की आपूर्ति के लिए वे हर गांव तक पानी के टैंकर्स भिजवाएंगे। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर देते हुए कहा कि वो इस काम के लिए फंड्स देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए एक कैंपेन चलाएंगे और जो भी नेसेसरी स्टेप्स है वो उठाएंगे ताकि जो डायरिया है उसको रोका जा सके, लोगों की हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, आप अगर देखो तो ये जो एरिया है इसमें काफ़ी महीनों से कूड़ा कचरा फैला पड़ा है, कोई इसे साफ़ नहीं कर रहा है, तो मंत्री ने इस बात को सुनते हुए कहा कि हम इस बात पे ज़रूर गौर करेंगे। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट आपको बताया गया है। So as you saw above, the people in power like the chief minister and the minister have to take actions. They do so through various departments like the public works department, the agriculture department, the health department, the education department and so on. They also have to answer questions that are asked in a legislative assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. At the same time, newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conference. तो मुख्यमंत्री और मंत्री जैसे लोगों को कार्यवाही करनी पड़ती है इस बारे में। तो बहुत अलग अलग तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो इन सारे डिपार्टमेंट के माध्यम से वो ये सब करते हैं और जो विधानसभा है उसमें पूछे जाने वाले प्रश्नों का भी उत्तर उनको देना होता है और लोगों से भी उनसे मतलब पूछना होता है कि उन क्या नेसेसरी जो स्टेप्स है उनको उठाए जाने चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इस तरह से एक डिस्कशन होता है इन लोगों के बीच। नाउ द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग सैनिटेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। फॉर एग्जाम्पल, इट मे make it compulsory for municipal corporation to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. तो उसी समय जो समाचार पत्र था, मीडिया था, ये काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए और सरकार को मतलब सरकार को जवाब देना पड़ता है जो भी मीडिया में आता है, जो भी न्यूज़पेपर में आता है। तो जैसे हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक जो बात करी कि एक आयोजन होता है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और उसमें जो मंत्री वगैरह होते हैं उनको उसमें जवाब देना होता है। तो जो सरकार है वो स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं के संबंध में राज्य के लिए नए कानून बनाने के भी निर्णय ले सकती है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया है कि हर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सुनिश्चित करता है कि हर एक शहरी क्षेत्र में पर्याप्त शौचालय यानी कि जो टॉयलेट्स फैसिलिटीज़ हैं वो हों। ये भी सुनिश्चित करता है कि हर एक गांव में एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता नियुक्त किया जाए। कुछ मुद्दों पर कानून बनाने का ये कार्य हर एक राज्य की विधानसभा में किया जाता है और विभिन्न सरकारी विभाग इन कानूनों को लागू करते हैं। तो पूरे देश के लिए कानून जो है वो संसद में बनाए जाते हैं। तो आप अगले साल संसद के बारे में और ज़्यादा जानेंगे। नाउ इन अ डेमोक्रेसी, it is the people who elect their representatives as members of the Legislative Assembly, that is MLAs, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. So these ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example. Whatever work is done by this department has to be approved by the members of legislative assembly. तो लोकतंत्र में यानी कि हमारी जैसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जो लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो विधानसभा के जो सदस्य जो एमएलए उनके रूप में वो चुनते हैं और इस प्रकार यह मुख्य अधिकार मतलब
एक बनता है, मतलब एक सरकार बनती है, और जो रूलिंग पार्टी है उसके जो मेंबर्स हैं तब जाके वो एक सरकार बनाते हैं जब वो चुने जाते हैं। और कुछ सदस्यों को फिर क्या किया जाता है, मंत्री के तौर पे नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। फिर यही मंत्री सरकार के अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके चीफ बनते हैं, उनके मिनिस्टर्स बनते हैं। तो जैसे हमने ऊपर देखा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हेल्थ जो डिपार्टमेंट है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के ये लोग मंत्री बनते हैं। फिर इन डिपार्टमेंट द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रूव किया जाना होता है। Now we'll move to next page. A wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on a particular topic of interest. तो एक wallpaper एक दिलचस्प एक्टिविटी है जिसके माध्यम से मतलब किसी भी टॉपिक पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली रिसर्च किया जाता है। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स एक्सप्लेन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग अ वॉलपेपर इन अ क्लासरूम। तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाई गई हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि जो बच्चे हैं क्लासरूम में तो वो किस तरह से एक वॉलपेपर बना रहे हैं और कितनी मतलब कितना सोच रहे हैं अलग अलग पहलुओं के बारे में, और फिर वो इन सभी पहलुओं को इकट्ठा करके एक वॉलपेपर बना रहे हैं। एंड दे आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स और क्या सॉल्यूशन आना चाहिए। तो यहाँ पे जो उनकी टीचर है उनको अलग अलग ग्रुप में उन्होंने डिवाइड किया है बच्चों को, एंड शी हैज़ गिवन द डिफरेंट टॉपिक्स टू देम, एंड बच्चों ने इस प्रोजेक्ट को बनाया है। एंड फाइनली आफ्टर मेकिंग दिस प्रोजेक्ट दे आर डिस्कसिंग इन द क्लास अमॉन्ग द डिफरेंट स्टूडेंट्स, लाइक जो भी क्लास के बच्चे हैं उनके सामने ही इस बात को वो डिस्कस कर रहे हैं। तो इस तरह से उसका जो सॉल्यूशन है वो खुद ही इस वॉलपेपर प्रोजेक्ट के थ्रू समझ रहे हैं। सो हियर वी एंड अवर चैप्टर एंड आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया। अगर समझ आया, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।